اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے کشمیر سٹیل TMT، راکب سرز ایکسیلنس پرے پورہ سری نگر اور موشن کوٹاز فاسٹسٹ گروئنگ انسٹیٹیوٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کشمیر کراؤن پر اردو خبرنامے کے ساتھ میں عاشق میر آپ کی خدمت میں حاضر۔ بلیٹن میں شامل کریں گے آج دن بھر کی اہم سرخیاں۔ PDP پر پابندی لگانے کی کوششیں، محبوبہ مفتی الیکشن کشمیر حل کا متبادل نہیں۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کی طرف سے اننت ناگ میں ورکرز کا اجلاس۔ پونچھ میں کنٹرول لائن کے نزدیک مشتبہ پاکستانی طیارے کی پرواز کے بعد ہائی الرٹ جاری۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی وادی کشمیر میں موسم سرما آتے ہی بجلی کا بحران، لوگ پریشان۔ اور ملک ہندوستان کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر میں بھی گرو نانک دیو جی کا یوم پیدائش جوش و خروش سے منایا گیا۔ اب ان خبروں کی تفصیل۔ PDP صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ حکومت ہند جے شری رام کے نعرے لگوا کر جموں و کشمیر کو بھارت میں ضم کرنے کی پالیسی اپنا رہی ہے۔ انہوں نے ان باتوں کا اظہار سری نگر کے مضافاتی علاقے HMT میں جنگجوؤں کے حملے جس میں 2 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے تھے کے بعد فوج کے ہاتھوں لوگوں کی مبینہ مار پیٹ کے تناظر میں ایک ٹویٹ پیغام کے ذریعے کی ہے۔ محبوبہ مفتی نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ فوجی اہلکار نیم شب کو لوگوں کو گھروں سے گھسیٹ کر باہر نکالتی ہے اور انہیں زدکوب کرتی ہے، ان بے گناہ لوگوں کو جے شری رام کے نعرے لگوانے پر مجبور کرتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اب جموں و کشمیر کو بھارت میں ضم کرنے کے لیے ایسا کرنا حکومت ہند کا وژن ہے۔ واضح رہے کہ سری نگر کے مضافاتی علاقہ خوشی پورہ HMT میں 26 نومبر کو ہونے والے جنگجوؤں کے حملے میں 2 فوجی اہلکار ہلاک ہوئے تھے۔ بعض میڈیا رپورٹس کے مطابق حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز اہلکاروں نے جائے واردات کی متصل بستی کے لوگوں کو زدکوب کیا اور گھروں سے باہر نکال کر انہیں مبینہ طور پر مار پیٹ کی۔ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں اس سلسلے میں کوئی بھی شکایت موصول نہیں ہوئی ہے۔ ضلع پونچھ میں پیر کی صبح مشتبہ پاکستانی طیارے کی کنٹرول لائن کے نزدیک پرواز کے بعد ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ بعد ازاں یہ معاملہ فضائیہ کے ساتھ اٹھایا گیا تاکہ اس بات کا پتہ لگایا جا سکے کہ پاکستانی طیارے نے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے یا نہیں۔ حکام کے مطابق یہ واقعہ آج صبح پیش آیا اور اس کا پتہ اس وقت چلا جب کنٹرول لائن کے نزدیک شوپورہ سنجیان کے درمیان دھوئیں کی ایک لکیر بن گئی۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کے مشتبہ طیارے نے کنٹرول لائن کے نزدیک کم و بیش 3.5 کلومیٹر تک پرواز کی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ یہ بات طے ہے کہ کسی بھی بھارتی طیارے نے وہاں سے کوئی اڑان نہیں بھری تھی، اس لیے جو دھوئیں کی لکیر پائی گئی ہے وہ پاکستانی طیارے کی ہے اور پرواز سے پیدا ہوئی تھی۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کی طرف سے آج اننت ناگ میں ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس کی صدارت پارٹی کے سربراہ الطاف بخاری کر رہے تھے۔ ان کے ہمراہ پارٹی کے کئی سینئر لیڈران بھی موجود رہے۔ انہوں نے سینکڑوں ورکر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غبکار الائنس لوگوں کو صرف دھوکہ دینے کے لیے ہے، ان کی پارٹی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرے گی۔ یہ کریں گے سے ملنے کے لیے آئے ہیں، اپنے آپ کو متعارف اپنے پارٹی کو متعارف کرنے کے لیے آئے ہیں اور لوگوں سے سپورٹ مانگنے کے لیے آئے ہیں۔
ये डेवलपमेंट के लिए चुनाव है और अनंतनाग बहुत अरसे से डेवलपमेंट के लिए तरस रहा है। मुझे मालूम है कि अनंतनाग के जो वस्त में इलाके हैं सब पानी की प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम है, यहाँ डेली वेजर्स की प्रॉब्लम है, यहाँ बाकी सारी प्रॉब्लम है। हम सब चीज़ों को समझने के लिए और उनके साथ शेयर करने किस तरह का उत्साह जनता के अंदर देखने को मिल रहा है इस समय? मुझे लगता है लोग तो पहली फेज में ठीक तरह से आए, मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। शुक्रिया पार्टी। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए। वक्फे के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar announces coaching for 8th, 9th, 10th all subjects, 11th, 12th Arts and Commerce. Also entrance coaching for LLB, AMU, DU, JMI, KU, CU and more. For admissions visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 9469 888 वक्फे के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। सरमा की दस्तक के साथ ही कश्मीर में बिजली का बहरान शुरू हो गया है, जिसकी वजह से मुकामी आबादी के शब व रोज शिद्दत से मुतासिर हो रहे हैं। ताहम मुतल्लिका हुकाम की जानिब से मौसर इकदामात उठाए जाने पर बिजली महकमे की कारकर्दगी पर सवालात उठाए जा रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक जिला बारामूला के हर इलाके से इन दिनों बिजली की आंख मचोली और नामाकूल बिजली शेड्यूल की शिकायत मौसूल हो रही है। मुकामी लोगों के मुताबिक इमसाल अगरचे बारामूला के इलाके के लिए पहले ही कटौती शेड्यूल जारी किया गया है, ताहम ज़िमनी सतह पर कटौती शेड्यूल भी कहीं नजर नहीं आता, बल्कि 24 घंटों के दौरान उन्हें महज चंद घंटे के लिए ही बिजली सप्लाई फराहम की जाती है। लोगों ने महकमा PDD से शिकायत की है कि वो हर महीने उन्हें बिजली की बिलें तो फराहम करते हैं, लेकिन बिजली का कोई नामो निशान ही नहीं है। सर अगर हम गौर खो से देखें, हम यहाँ पे 4000 मेगावाट बिजली हमारे यहाँ कश्मीर से निकलती है, जबकि हमारे कश्मीर में सिर्फ 1300 मेगावाट ज़रूरत है। पूरे कश्मीर जम्मू कश्मीर में 1300 मेगावाट की ज़रूरत पड़ेगी हमें, जिसमें से हमें मुश्किल से शायद 600 या 500 मेगावाट यहाँ देते हैं। अगर 4000 मेगावाट में से 1300 मेगावाट हमें यहाँ पे बिजली देते तो हमें बिजली का बहरान नहीं होता। ठीक है सर, बिजली आप खुद भी देख रहे हो सर, मतलब इन्होंने एक शेड्यूल रखा है 2 घंटे बिजली, 2 घंटे मीटराइज एरिया में। मीटराइज एरिया में पहले शेड्यूल होना ही नहीं चाहिए सर, क्योंकि वो मीटराइज एरिया है, वहाँ 24 घंटा बिजली होनी चाहिए। आप मीटराइज एरिया में देखिए सर, वहाँ भी शेड्यूल रखा है इन्होंने। आपको मैं ये बताता चलूँ कि मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी चैनल का, क्योंकि जो हर टाइम हमारे मुद्दों को उजागर करती है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँ, ये बहुत लगभग 2-3 सालों से इधर चल रहा है। इससे पहले तो बिजली अच्छी खासी चल रही थी। जब से वो 370 का उन्होंने बोला था, उसके बाद कश्मीर में सब कुछ ठीक होगा, लेकिन हमें कहीं ज़मीन पे नज़र नहीं आ रहा है। तो सीधी सी बात यह है कि आज विंटर में होना चाहिए था, क्योंकि बच्चों की तालीम का मसला है बहुत बड़ा। तो एजुकेशन सेक्टर में हमारा नुकसान हो रहा है बच्चों का, क्योंकि कल को वो एग्ज़ाम देने जाएंगे, कल को मार्च में उनको स्कूल अटेंड करना है या रात को, लेकिन 6 बजे से आपको पता है आज दिन बिल्कुल छोटा होता है, रात बहुत बड़ी होती है, उसमें तो पावर चाहिए था। कोई गरीब बच्चा फार्म एरियाज़ में वो क्या करेंगे? तो इसलिए हमने पिछली बार भी इधर प्रोटेस्ट किया। मैं चाहता हूँ कि LG साहब, गवर्नर साहब अपनी ज़ाती मुदाखलत से इस मसले को हल करे। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू और कश्मीर के सिख फिरके ने भी गुरु पूरब नहायत ही मजहबी शान व शौकत से मनाया। इस सिलसिले में बारामूला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बारामूला की जानिब से छठी पातशाही गुरुद्वारा में सबसे बड़ी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें बारामूला ज़िले व मुलिका इलाकों के लोगों ने खुसूसी शब्द व कीर्तन में शिरकत की। तकरीब का आगाज़ गुरु ग्रंथ साहब के भजनों से किया गया। गुरु घर के मैंबरां सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, पाठी ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। जो आज का दिन है, आज सब सिख जगत का जो 551 जो प्रकाश पुरब हम अपने गुरु नानक देव जी का आज पूरी कौम, पूरी सिख कौम पूरे वर्ल्ड में मना रही है, तो उसी सिलसिले में जो आज छठी पातशाही बारामूला जो यहाँ की डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, उन्होंने भी यहाँ की संगतों के लिए प्रोग्राम जो है प्रोग्राम बनाया हुआ है। और सारी, हालांकि हालात बहुत ख़राब हैं, फिर भी सारी जो संगतें हैं वो सुबह से गुरुद्वारे में आके दर्शन कर रही हैं और अपने गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब जो है वो बड़े धूमधाम से मना रही हैं। ये गुरु नानक देव जी ने एक क्लियर जो मैसेज दिया है लोगों को
जो एक पूरी कौम को मैसेज है कि और जो आज जो वुमेन एम्पावर का आप देखते हो जो गुरु नानक देव जी ने शुरू किया है, सो क्यों मंदा आखिए चित जाने राजान, और दूसरा जो आजकल पूरे देश में चल रहा है, तो गुरु नानक देव जी ने अपनी गुरबानी में फरमाया है, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। अगर इतना ही लोगों को समझ आ जाए तो सारे झगड़े फसाद दुनिया में खत्म हो जाएं। जो दिन है ये महान दिहाड़ा है हम सिख कौम के लिए। आज हमारे पहले गुरु साहिब कमाल श्री गुरु नानक देव जी का जन्म दिन है और 551 यानी 551 बर्थडे है उनका। तो आज के दिन गुरु नानक देव जी ने पाकिस्तान लाहौर रायबरेली में जन्म लिया था और एक नई कौम को जन्म दिया जिसको सिख कहते हैं। तो यानी आज ही के दिन गुरमुख काल में प्रगट हुआ, आज ही जो सरदार हैं वो इस दुनिया में आए। शुमाली कश्मीर के कुपवारा के कस्बा त्रेहगाम में मकतबा इब्राहिमी की जानिब से इतवार को एक सीरती मुकाबले का एहतमाम किया गया जिसमें 100 से ज़ायद तलबा ने शिरकत की। मकतबा इंतज़ामिया का कहना था कि इतवार को त्रेहगाम स्टेडियम में एक तहरीरी इम्तिहान अमल में लाया गया जिसमें तलबा व तलबात की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। असल में इरफान साहब हमने ये जो प्रोग्राम रखा था तहरीरी सीरती टेस्ट मुकाबले का इम्तिहान जो रखा था, ये हमारा एक मकतबा यहाँ पे चल रहा है बच्चों का जो आवर टाइम में चलता है, यानी असर नमाज से लेके मगरिब नमाज तक, और कभी सुबह भी हुआ करता है ये। तो इसमें हमने ये प्रोग्राम रखा था एक टेस्ट सीरती टेस्ट मुकाबले का। तो बहुत सारे बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, कुछ लड़कियां भी थी और लड़के भी थे। तो मुख्तलिफ इलाकों से आए थे कि उस क्रिकेट स्टेडियम में इसका इम्तिहान हुआ और बहुत सारे त्रेहगाम के ज़ीशोर आदमी भी इसमें शरीक थे। तो इसके जो सुपरिटेंडेंट थे वो इंजीनियर अब्दुल हमीद मलिक साहब थे। ये हमारे बच्चे स्कूल में तो असली तालीम पढ़ते हैं, दुनियावी तालीम पढ़ते हैं, लेकिन दीन की तरफ उनकी तवज्जो नहीं होती है। इसका मकसद ये है कि हमारे बच्चे फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ इनके अंदर दीनदारी भी होनी चाहिए। तो इस वजह से हमने ये प्रोग्राम किया ताकि इनके अंदर ये दीनी सलाहियत पैदा हो, हाँ अपने पैगम्बरों के नाम इनके याद रहे और हमारे जो सहाबा थे उनके नाम याद रहे, मुसलमानों के जो बड़े बड़े गुजरे हैं उनके नाम उनको याद रहें, और इसी तरह ये नमाज की तरफ ये रागिब हो जाए, दीन की तरफ रागिब हो जाए, इसका पैगाम कोशिश करेंगे। हमारा जो इदारा चल रहा है इसकी कोशिश यही है, आगे जो आने वाले दिन है इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में भी ये प्रोग्राम होते रहेंगे इंशाल्लाह। बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। दीजिए अपने मेजबान आशिक मीर एडिटर सोफी सजाद को इजाजत इस वादे के साथ कि हम करते हैं आपकी बात और कहते हैं सच जिम्मेदारी के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है कश्मीर स्टील टीएमटी, राकिब सर्स एक्सीलेंस परेपुरा श्रीनगर और मोशन कोटाज फास्टेस्ट ग्रोइंग इंस्टीट्यूट। मुल्क किस तमीर से तरक्की मज इश्तराक तुहंदिस प्रत कदमस पे तुहंद हम सफर कश्मीर टर्बो TMT सरी, चाहे बुनुलीतन या तूफान महफूज रूजू तो तुहंद मकान पान नयो तुहंद पनुन कश्मीर टर्बो TMT सरी, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar announces coaching for 8th, 9th, 10th all subjects, 11th, 12th Arts and Commerce. Also entrance coaching for LLB, AMU, DU, JMI, KU, CU and more. For admissions visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.